Malo malo hijkat loke. It's the second general conference, but in factual, this is the first general conference of all Pakikesan District Students Union. Because बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि ये आप सबको बहुत मिसकंसेप्ट होकर भी बहुत लोग को बैठा है, मुझे पता है। और जो आने वाला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव बनेगा, आप भी ऐसे होगा, अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना पड़ेगा। Good morning, ladies and gentlemen. It's my pleasure and privilege to stand in front of you to give the welcome address. I, on behalf of the All Pakikesan District Students Union, and on behalf of the students community of Pakikesan District, and on behalf of the conference organizing committee of the second general conference come election selection of all Pakikesan District Students Union, would like to extend my heartiest welcome to our chief guest, Honorable Local MLA Shri Bioram Hage ji, who is also the president of Bharatiya Janata Party, Arunachal Pradesh, and he is known as a man, as a principle of talk less and work more. I welcome you, sir, to our program, to our conference. I extend a special welcome to our guest of honor, Shri Doji Tana Taraji, the newly elected president of All Arunachal Pradesh Students Union, APSU, the apex students body of Arunachal Pradesh, and he is one of the youngest APSU president ever we have. He is also the guardian of 25 district students unions of state of Arunachal Pradesh. And if I'm not wrong, dear President, sir, this is your maiden official visit to our district. Therefore, I extend my heartiest welcome to you as our guest of honor of the second general conference come election selection of all Pakikesan District Students Union. I welcome you, sir. I cordially welcome to the most handsome, decent, and senior most officer of Pakikesan District. He is none other than Engineer Tayum Top, the Superintending Engineer, PHE Government of Arunachal Pradesh, and he is the chairman of Pakikesan District Intellectual Forum, in short PDIF, the apex body or the parental organization of our district Pakikesan. As taking this privilege, the opening remark or the welcome address, I would like to highlight that all Pakikesan District Students Union was officially established on 20th November 2019. After bifurcation from East Kaming district on 14 December 2018. And thus we have completed our 3 years of tenure recently a few days ago. And accordingly, we are conducting the second general conference on due time. And that shows our maturity and it reflects that we respect the very constitution of our union. This day would be a historic day for the students' fraternity of Pakikesan District and more particularly to District Student Union. Literally speaking, it's the second general conference, but in factual, this is the first general conference of all Pakikesan District Students Union because in 2019, during the formation of this union, there was no any conference was held except the election part was carried out by the then APSU. Therefore, considering it a special moment, we the conference committee has decided to place on record and to honor all the former student leaders of Pakikesan district, including that of posthumous honor. And at the same time, we'd like to congratulate the members who recently got inducted in APSU and ALSU from our district on the occasion of this first conference of District Students Union Pakikesan district. And moreover, the gracious presence of our local MLA, Shri Bioram Hage ji, APSU President, Shri Doji Tana Taraji, and the Chairman PDIF, Shri Engineer Tayum Tog ji,
Sir, your presence have made the day more colorful and it gives a new ray of hope for young generation. हमारा 3 साल का जो जर्नी है, हम कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे था, थोड़ा सा हाईलाइट करने का तो बनता है। सबसे पहले मैं यहाँ कैसे आया 2 शब्द में बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ आने का वजह आज मैं दिल खोल के आप सबका बीच में इस मंच पे रखना चाहता हूँ। मेरा यहाँ आने का वजह, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग दुख भी था, लेकिन इस तरीक़ा से मुझे कभी भी मौका नहीं मिला कि हमारा स्टूडेंट्स पैटर्निटी का बीच में हो, या मेरा सीनियर्स या पब्लिक का बीच में हो, या किसी ऑफिसर्स ऑफिशियल का बीच में हो। वैसे 2017 में वेरी ब्रीफली, आप लोग बोरिंग नहीं होना है, क्योंकि ये आप सबको बहुत मिसकंसेप्ट होकर भी बहुत लोग को बेटा है, मुझे पता है, और हुआ भी था, ये भी पता है। 2017 में मुझे यहाँ से हमारा सारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो मिल के मुझे एक्सू में, जो हमारा अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट था, तो हम वहाँ में ऑल ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का तौर पे हमारा यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव करके काम किया करता था। लेकिन 2018 में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ से बाइपार्केटेड हो गया। तो बाइपार्केटेड होने का बाद आप लोग ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत देकर एक्सू का तौर पे काम करने को भेजा, लेकिन मेरा वहाँ डिस्ट्रिक्ट बन जाने का बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। वो मेरा इमोशनल एक फीलिंग था, ना ही या मैं वापस आके काम कर सक रहा था, या फिर हम वहाँ एक्सू में एज ए जनरल सेक्रेटरी का तौर पे काम कर सक रहा था। जब डिस्ट्रिक्ट बन गया तो नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो ऐसा होने का बाद मैं एज ए फेडरल मेंबर ऑफ द आपसू, आप सबको पता है आपसू इज द पेरेंटल एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, मैंने आपसू का दरवाज़ा में खटखटाया। उस समय में जो हमारा फॉर्मर टीम है, प्रेसिडेंट लीड बाय आउ हबा बगंग एंड जनरल सेक्रेटरी लीड बाय दी टोबुम डाई, तो मैंने आपसू को बोला कि वेरी अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट मिल गया, हम कुछ तो है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट लीड बाय हमारा एमएलए साहब, सारा यहाँ का सीनियर्स, पंचायत लीडर्स सब मिल के स्टेट गवर्नमेंट को फाइट किया, डिस्ट्रिक्ट मिला। कुछ तो 90% है, लेकिन उसमें से
मेरा इंडिविजुअल का मैं बात करूंगा, 10% मुझे दुख भी था कि मुझे इनकम्प्लीट होकर रखा था। तो मैंने आपसू को रिपोर्ट किया कि हमको कहाँ रखेगा और हम कहाँ जाएगा। ये चीज़ में बहुत कंफ्यूज है मेरा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का बीच में, और सीनियर्स में भी कंफ्यूज है। तो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। तो बीइंग ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स कम्युनिटी, आपसू ने भी बहुत रिसर्च करके देखा कि बात तो सही है। आप लोगों ने यहाँ पाके के संग हमारा यहाँ आपसू एक ब्रांच स्टूडेंट यूनियन हुआ करता था, अभी भी है, हमारा गाची भाई प्रेसिडेंट अभी भी है। आप सब ने भेजा है, लेकिन एक इस डिस्ट्रिक्ट बनने का बाद में आप तो वहाँ नो मोर पावर, नो मोर फंक्शन। तो इन लोग ने भी बहुत कोशिश किया, बहुत मैंने ये करने का, सोल्यूशन लाने का। तो हम आज इस चीज़ को यही कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ से कुछ भाई लोग बोल रहा था कि जैसे हमारा जो आगे वेलकम एड्रेस का तौर पे हमारा ये आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी ने आप लोग को हाईलाइट कर दिया कि कॉन्फ्रेंस भले ज़रूर सेकेंड है, लेकिन इस तरीक़ा से देखा जाए तो दिस इज़ फर्स्ट। हाँ, मैं मानता हूँ लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। तो आपसू ने मेरा बात को लेकर अपना सारा एजुकेटिव में डिस्कस हुआ कि कैसा करेगा। नॉट ओनली दिस पाके के संग, वहाँ सी योमी में भी हुआ, लपारादा में भी हुआ, तो हमारा आगे पीछे डिस्ट्रिक्ट सब हुआ। तो इन लोग ने ये निर्णय लिया कि जो यहाँ प्रोटोकॉल में सर्व कर रहा है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको अपना जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में चलो उसको एक प्रमोट करके या फिर एज इट इज़ करके भी वहाँ सर्व करने किया माने दिया जाए। That was the apex organization and the parental organization of the students community। ये आपसू का एक डिसीजन था, और आपसू ने अपना से भी डिसीजन नहीं लिया, हाउस में रखा है। जो हमारा बायलॉ रिव्यू होता है, बायलॉ से सब कुछ चलता है। तो उसमें सारा DSU का पिटरल मेंबर अभी हम लोग का पास 25 है। हमारा प्रेसिडेंट दोजी तना सर यहाँ बैठा है, उनके साथ यह सारा एग्जीक्यूटिव आपसू बैठा है। हम सब बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन इन लोग का बेटा है, ये लोग हमारा पिताजी है। तो इस तरीक़ा से डिसीजन लेने के लिए वहाँ में हाउस में रखा था सारा पिटरल मेंबर, राइट फ्रॉम दी लॉन्गडिंग टू अप टू तवांग, कि सबका कहना है ये तो बहुत मैंने क्या बोलेगा, बहुत दुख वाला बात है। सच में वह इतना एक्टिवली काम कर रहा है भाई, अनफॉर्चुनेटली नो रुक जाओ तो इन कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर। तो इन लोग ने ये सोचा कि नहीं, कंटिन्यूशन करने दो, 3 साल का ही तो बात है। अभी सोचिए, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और 3 साल कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं है। हमें तो ऐसे लग रहा कि हम कल ही आया था, लेकिन अभी 3 इयर्स निकल गया। तो इन लोग ने ये डिसीजन लेके सारा डिस्ट्रिक्ट को, जैसे वेस्ट सियांग में काम कर रहा था आपका सीएमई में भेज दिया, लोअर सियांग में काम कर रहा था उसको लपारादा में भेज दिया, लाइकवाइज ऐसा करके हमको यहाँ में प्रेसिडेंट बनाया गया था आपसू टीम ने, और हमारा पिटरल में सारा 25 डिस्ट्रिक्ट मिल के। तो मैं यहाँ आप प्रेसिडेंट का तौर पे काम करने को मौका मिला था। साथ साथ में जो रिमेनिंग पोस्ट है उसको फिर हमारा बीच में, हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का बीच में एक सर्चिंग टीम निकला है, उसको वो इंटरिम कमेटी कुछ नहीं बोलेगा, उसका नाम रखा था JHPC, जैसे कि जॉइंट हाई पावर कमेटी। इन लोग ने बाकी जो अदर एजुकेटिव मेंबर्स को सर्च किया है कि डिसिंग पासो से किसको रखेगा, सिजूसा से किसको रखेगा, देन आपका पापू वैली से, पासा एंड पाके से किस को रखेगा। इन लोग ने एक कमेटी निकला है, बहुत अच्छा किया है, एक वहाँ से एक टीम निकला है। तो ऐसा करके हम लोग ने 3 साल को आज यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस बीच में हम लोग यहाँ का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रह गया। तो हम लोगों ने अपना जो एक्टिविटीज़ है धीरे धीरे शुरू कर दिया था। तो हमारा टीम जो बहुत काम किया ऐसा तो नहीं बोलेगा, और नहीं किया हम ऐसा भी नहीं बोलेगा। हम लोग जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे करना है, चलो वोट किया है तो नहीं बोलेगा, बहुत कोशिश तो किया है। चलो 100 में से सक्सेस नहीं होने से भी कुछ परसेंट, 60 बोलो 50 बोलो, कुछ परसेंट तो हम लोगों ने भी जो लोगों का भलाई के लिए, स्टूडेंट्स का पैटर्निटी के लिए, एरिया का डेवलपमेंट के लिए हम लोग काफ़ी रोल अप किया है।
जहाँ तक है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बात करेगा, जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना है हम लोग किया है। जिस इसको मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेने से भी होगा, बहुत लंबा समय जाएगा। जिस स्कूल में स्कार्सिटी ऑफ टीचर का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियां होता है, और जहाँ डेवलपमेंट का बात करेगा, आपका रोड का हो गया, जहाँ तक हम लोग तंगरी भी गया, चेक एंड बैलेंस बीइंग ए प्रेशर ग्रुप का हिसाब से हम लोग तंगरी तक भी गया है। सारा PNGSY रोड को हम लोग सर्च किया है, ऑफिसर को प्रेशर डाला है, क्वालिटी वर्क लगाना है, ये सब पूरा रिकॉर्ड है। तो इस डिटेल में जाएगा तो आपको बोर भी हो जाएगा और सबको बात करना है अभी एज पर द एजेंडा। पालो मालो हिजकत लोगे ओ कुंभो मिल जाका पाके देला सोगे मूले आने पाके गए जिला पुलीना सो ane site sote san Pakai pemine mimbe pakune Raja kamule gete hadile isi hadile diri mabeka Raja kamule gete hadile isi hadile diri mabeka Payalincho Dete opune isi anyane Nade dukune sole nulam Dete atesam isi ayusam Yulo etene no pukube Kechune nige juda kobe
buju ya chundu buju Hukumnya tosol sokumnya tosol melena sol pesol Hukumnya tosol sokumnya tosol melena sol pesol Pakai gejilap lina milin aleso Melin aleso Jadi tesol leliane dia te habumlo Yote habumlo ane papu pakai pasa ane singte sote sam Nuku anyang misi anyang paling hibani paling hibani Paling hibani paling hibani Since this is student organization and student unions, formation of district body, and you have long stories I have heard. I don't have anything to say on that. But we have a special guest, as a guest of honor. President Apsu is here. I think you have been also told that this is your maiden visit, an official visit after you are elected to the post of President Apsu. In fact, we always, welcome you. In fact, the opening song you have heard, there is one line, Doni chage loge ane papum pareno, get lobe hupu yato. Since you are President Apsu, but you are from Papum Pare. I think that's the reason Paki Keseng has, invited you to give that blessing. We are grateful. The most powerful and effective group in the nation is the student. Just look at from age 4, 25, and up to 30. These are the being energy that nation beholds. History is witness to many such revelations, many such reformations brought out by the students. The shape of the area, shape of the district, the shape of the state, the psyche of the nation is equally, building them and molding them is equally the responsible of the most effective youth group, the students. First of all, just imagine, I was a student, my SP Savage here, he was a student, BC Tok, Sanjeev ji, Advocate Raju is here, my friend Sunil is here, MLA Savage is here, all were student, but I think we are not a student today, but we are learning student also. Just imagine the transformation that you think you are a student and you think you won't be one day become people on the stage or people like me or people like other who are more successful than me or us. But this is just a transformation. Transformation means
you are building your career, you are building your life, and it is you to transform, and you are building yourself, and you are sharpening your energy, sharpening your knowledge. You are excelling. You are trying to make yourself more perfect in what you are doing. And I know there are very few will come to the top, and many of them will become a good farmer. Many of them will become good contractor. Many of them who are not able to do anything, I am sorry, may become a politician also. So, and the politicians can do everything, you know. So that's what the students who are growing up now, you are future of the state, future of the district, and the people, the parent, the teachers look upon you that my boy, my children will one day lead me. They will lead the society. Someone has rightly said the prosperity of a country depends not on its abundance of revenues or on the strength of its fortification, but on its men of education, enlightenment, and character. I think I would request the students, they also strive hard to build their characters with strong characters of fully integrity, not undoubtful integrity. So if your integrity is once doubted or is doubtful, we are wiped out. So this is a cornerstone. I think there are many people, many children would like to know from a technocrat, what should I offer you? I would like to tell a little story of पाके रिवर। पाके रिवर के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यू मस्ट बी नोइंग, जब शादी रहता है ना, जब बहुत बड़ा शादी होता है, जल नाम, जब बड़ा शादी देता है तो औरत को बहुत माने हमारा लेडी को, जो बेटी को बहुत अच्छा से सज धज करके पूरा आबरू बना कर क्या डेकोरेट करके पूरा सुंदर हो जाता है। तो ऐसे करके सोच के देखिए 1000 ईयर्स पहले एक हिस्ट्री है जो माइथोलॉजी है ज़रूर, बट दिस इज स्ट्रांगली रिसाउंडिंग इन आवर माइंड। वो कैसे है, जब हम लोग निशी में बोलते हैं न्यम बोनम, उस समय एग्जैक्टली आप लोग न्यम खानम को सुना होगा जो निशी में है, यू मस्ट बी नोइंग। जब पाके नदी जन्म लिया यहाँ से, तो है बीनम वो अपना से एक यहाँ से ट्रैवल करता है एकदम मैंने सज धज करके चारों तरफ पूरा क्या बोलता है उसको सार्बेंस जरा पाने पूरा वाता डंजरा पाने दा नदी में जितना जीव जंतु है, दा फिश है, उस सामने में रहने वाला चिड़िया है, और साथ में बहुत है, टली है, आई थिंक जो एक्वाटिक लाइफ है साथ में लेके जा रहा है। जाते जाते कहाँ में पहुँचा, कामिंग नदी में मिलना है बोला है। वो जगह का नाम है चिन्नीगुगी। चिन्नीगुगी में जब पहुंचा है तो दोनों में वार्ता होता है, दे हैव ए डायलॉग कि पके ने पूछा है, पके माँ पूछा है कि कामिंग को कि आप क्या खाता है। कामिंग बोला है हम मुसुब भी खाता है, मबिन भी खाता है। मुसुब मतलब एनिमल को बोलता है, मबिन मतलब आदमी को बोलता है। तो हम सब कुछ खा देता है, आदमी भी खाता है, एनिमल भी खाता है। पाके नदी कभी आदमी नहीं खाता है, यहाँ में आदमी का एक्सीडेंट बहुत कम होता है।
तो पाके नदी एक प्योरिटी का एक सिंबल भी है। तो इसीलिए हम लोग पाके दर्शन मनाया था 2016 में। आई थिंक उससे हम लोग जब सीएम अभी पीके है, उनको यहाँ बुलाया था पीके में, तो उनका जो भाषण में अभी भी है कि पाके केसन का डिस्ट्रिक्ट नाम भी पीके है, मेरा भी नाम पीके है, ये होगा तो पीके मेरा समय में होगा बोल कर। तो ये पाके नदी गया उधर चिनीगोगी में, चिनीगोगी से जब नहीं पाके बोलता है, पाके नदी बोलता है, हम तो बहुत प्योर आदमी है, प्योर है, आई एम वेरी प्योर, आई डोंट इट मोस्ट हम मैं भी नहीं खाता, आदमी नहीं खाता है बोल करके ये वापस आ गया चिनीगोगी से। वापस आकर के सिजुसा पहुंचा है। अब गूगल मैप में देखिए पूरा यू टर्न हो गया आपका। अभी वो गाना में एक चिनीगोगी का भी एक वर्ड है कि दिस डिस्क्राइब्स द बाउंड्री ऑफ दिस। आप लोग गाने वाला शायद मालूम नहीं होता होगा, क्योंकि गाना लिखा था मैंने, तो उसमें ये लिखता है नागर यंतर है आने तंगरी। तंगरी हमारा लाश बस्ती है, रोमी लाश बस्ती है सेपा के साथ, आने पप्पू नदी है, पापू नदी, उधर से होती हुई चिनीगोगी हो करके हम ये से जन्म लिया हूँ बोल करके ये बोल रहा है। मेरा ये बताने का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आज के मीटिंग में बताने का मतलब ये क्या है, स्टूडेंट का समय में हम रूट्स को जानने की कोशिश करना है, हम कैसे एग्जिस्ट हैं। तो इन्होंने अपना प्योरिटी, अपना ट्रूथफुल, अपना ड्यूटीफुल, अपना जो सैंक्टिटी को जो मेंटेन किया है पाके दर्शन। मैं स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आने वाला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनियन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो एग्जीक्यूटिव बनेगा, आप भी ऐसे होगा। अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना पड़ेगा, अपना इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ेगा, अपना ड्यूटीफुल, अपना ट्रांसपेरेंसी सबको मेंटेन करना पड़ेगा। यही मैं ये बताना चाहता हूँ, विद मैथोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तो एक एबंडेंस, लैंड ऑफ एबंडेंस है। यहाँ में हम बोला कितना रेवेन्यू हमारा एबंडेंट है, अवेलेबल है, लेकिन हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं होने से वो ठीक नहीं होगा। ये बात को मैं दर्शाने के लिए, बताने के लिए आप लोगों को छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ। मैं दर्शन के बारे में बोलूँगा, दर्शन पाके दर्शन का बारे में बताऊँगा कि ये एक फेस्टिवल जैसा था, लेकिन अब भारत दर्शन करो, आप दूरबीन लेकर के किसी को भी देखो वो नहीं है, दूरबीन लेकर के आप देश को घूमो वो नहीं है। दर्शन का मतलब क्या है, आप दूरबीन लेकर खुद को देखना है। यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ कि आप क्या है। एक छोटा सा बात मैं बोलता हूँ, आपका घर में कोई गेस्ट आया है, तो गेस्ट आने से हम लोग क्या बोलता है, अरे ये ने हापा में इसे हम लोग कहीं जाते तो बोलते हैं ना, तो पानी उन्हें देख देना, थोड़ा चाय पानी। इस एक बात में वो गेस्ट को कितना सुकून होता है। वो गेस्ट तो नहीं पीने से भी वो सोच लेता है, वाह आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ, हमको मज़ा, मतलब मेरे लिए केयर है। ये ने हापा के मैं कहीं जाते मैं और इसे हम लोग कहीं जाते, ऐसे ही तो बड़ा आदमी, घर का आदमी बोलता है। इससे मीनिंग क्या है, अतिथि देवो भव। अभी हम टूरिज्म हब बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को, पाके केसन डिस्ट्रिक्ट को। स्टूडेंट्स का लाइफ में, स्टूडेंट का मेंटेलिटी में, स्टूडेंट का साइकी में ये घुसना पड़ेगा कि ये जाकर के अपना बच्चों, अपना पिताजी को, अपना स्टूडेंट कम्युनिटी को, अपने पेरेंट को ये बताए कि अतिथि को हम अगर देवता समझने लगेगा तो क्यों नी ने पाबाई नो कम आते कम से दो, नी कम से दो, नी ने लोमा कम वही दो हिकमा दो, लाइक दैट। अगर अतिथि हमारा हमको खुश नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। इसीलिए अतिथि देवो भव ये वर्ड को हम अगर डिस्ट्रिक्ट को, पाके केसन डिस्ट्रिक्ट को एक टूरिज्म हब बनाना चाहता है, द मैजिक वर्ड विल बी अतिथि देवो भव। तो इसको लेते हुए
मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, स्टूडेंट यूनियन को आज एक दो बात रखना चाह रहा हूँ। एक सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट होते हुए रिटायर होने के लिए कुछ साल बाकी है। ये पाकी के संग जब जन्म हुआ था उसी ईयर में हम भी जन्म हुआ है। गोल्डन जुबली हुआ तब मेरा भी 50 साल ये लोग पीता क्या बोलता है केक काट दिया। अभी मैं 75 ईयर्स में पहुंचेगा ना नहीं पहुंचेगा मालूम नहीं, लेकिन मैं आज आप लोग का ये मौका को लेते हुए हम एक दो अपील करना चाहता हूँ। हमारा स्टूडेंट लोग पढ़ता जरूर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा स्टूडेंट का एपेक्स बॉडी का जो स्टेट का एपेक्स बॉडी का प्रेसिडेंट या बेहतर है दोजी तना, आपसे भी गुजारिश रहेगा कि हमारा बच्चों में जो एम्प्लॉयबिलिटी को क्यों हम लोग गौर नहीं करते हैं। We have thousands of graduates, we have thousands of technocrats, but employable skill नहीं है। तो हम ये स्टूडेंट का मंच, आप लोग का मंच है, इनफैक्ट ऑस्पिशियस प्रेजेंस ऑफ हमारा ऑनरेबल एमएलए तो खुद है ही है, स्टूडेंट का प्रेसिडेंट भी है स्टेट का, दोनों टॉप बॉस स्टेट का। ये क्रिटिकल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में आप दोनों सोचना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट वांट मतलब तुम लोग देखो मेरा ग्रेजुएट्स अवेलेबल है, लेकिन ऑफिस में आके थोड़ा लेबर भी दे दो ना बोलने से। मेरा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लोग आता है थोड़ा लेबर ही दे दो बोल के। आई यूज टू टेल देम प्लीज़, हम भी ग्रेजुएट होकर के इंजीनियरिंग में आया था, लेकिन आई डोंट वांट टू एम्प्लॉय यू एज ए कैजुअल लेबर। आप कैजुअल लेबर मत करो, ढेर सारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें जा करके आप लोग आगे बढ़ो। लेकिन न मो अभी वो भी एक ग्रेजुएट होके, दो आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन हम भी ग्रेजुएट होकर के नौकरी में घुसा था। वो अपना सेम ग्रेजुएट को कैसे कैजुअल लेबर देगा? तो किस हिसाब तक, किस हद तक हम लोग जा रहा है, उसको आने वाला स्टूडेंट बॉडी को भी हम लोग ये बोलेगा मैंने ओके दिस हल्ला गुल्ला हमारा पॉलिटिकल इशू, स्टूडेंट इशू, बाउंड्री इशू, लॉट ऑफ इशूज आर देयर, विल डू दैट, मिलकर करेंगे हम लोग, गवर्नमेंट, स्टूडेंट, सोशल बॉडीज हम लोग करेंगे जरूर। लेकिन खुद का भी स्थिति तो हमारा सस्टेनेबल कैसे होगा? क्योंकि आप अच्छा पढ़े लिखेंगे तो हमारा पेरेंट अच्छा होगा ना, पेरेंट विल बी हैप्पी, दे विल स्लीप नाइसली, उन लोग घर में अच्छा सो पाएगा। हाँ मेरा बेटा कुछ हो गया, अच्छा हो गया, मेरा रिलेटिव अच्छा होगा, खुश होगा, लाइक दैट। हम आप लोग का ये मंच से ये बताना चाह रहा हूँ, छोटा छोटा चीज़ कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंड चीज़ ये मेरा था स्किल, एम्प्लॉयबल प्रिसीजन स्किल के बारे में बोला। सेकेंड ही मैं बोलना चाहता हूँ प्लास्टिक न्यूसेंस। देखिए जब तक प्लास्टिक हमारा साथ न्यूसेंस बनकर आएगा ना, प्लास्टिक का तो गलती नहीं ना, खाने पीने का बाद हमने फेंक दिया, इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट प्लास्टिक, हमारा मेंटल का फॉल्ट है प्लास्टिक को जमा रखना। प्लास्टिक को कैरी करके हमारे घर में ले जाएगा, आई विल डिस्पोज ऑफ। ये प्लास्टिक न्यूसेंस जब तक नहीं रहेगा हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं होगा। कैसे हमारा? क्योंकि यह हमें हमारा टूरिज्म ग्रो नहीं हो सकता है। प्लास्टिक न्यूसेंस के बारे में आप लोग सोचना है। हम तो छोटा सा एग्जांपल उस दिन फिर बताया था। रिसेंटली आई हैव बीन टू, मेरा बेटी का जो MBBS उसमें गया था, क्या बोलता है उसमें ये मैं कन्वोकेशन में गया था, उसके बाद ऊटी गया था। प्रेसिडेंट ऊटी में क्या था, 5 लीटर पानी का डिब्बा सिर्फ है। आज का ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग डिस्कस नहीं कर पाया, आज का जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 5 लीटर का एक तो डिब्बा, पानी का डिब्बा, और जो पीना चाहता है ग्लास रख देगा, दे विल कम एंड टेक, प्यास लगने वाला पी लेगा। 5 लीटर वाला अगर डिब्बा होगा तो यू कैन नॉट थ्रो इट, यू विल हैव टू कैरी इट टू योर होम।
तो स्लोली यू हैव टू डू सम ट्रांजिशन। अब जहाँ कहीं भी देखो गाड़ी से देखो फेंकना शुरू हो रहा है, दिस बिकम ए सोशल इशू, सोशल मीनेस। ये स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होना चाहिए। मैं ये आग्रह करूँगा आप लोग का लेवल में भी उसके बारे में सोचना शुरू करिए। आज आफ्टरनून में एक मीटिंग है, 14 दिसंबर 2018 को हमारा डिस्ट्रिक्ट खुद इनाग्रेट हुआ था। ऑनरेबल एमएलए और डीसी ने एक मीटिंग रखा है कि डिस्ट्रिक्ट हुड डे ये 14 दिसंबर 2022 को हम करने जा रहे हैं। वी वांट टू रिमेंबर, वी डोंट वांट टू फॉरगेट डिस्ट्रिक्ट हुड डे, बिकॉज इस डिस्ट्रिक्ट को हम बनाने में हमारा खून पसीना से हम सींचा है। इसको मामूली नहीं समझना है, ये कष्ट से हम लोग बनाया है। इसीलिए स्टूडेंट फोरम आपको राइट फोरम है, हम इस बीच में बताना जरूरी है। ये डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बनाने में खून पसीना से हम लोग सींचा है, उसको खून पसीना से इरीगेट किया है, तब जाके डिस्ट्रिक्ट बना है। इसीलिए जब डिस्ट्रिक्ट है अपना पास, उसको अब पालन पोषण नर्चर करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में मैं बोलूँगा कि घास फूस काटना शुरू हो गया। हमारा लेमी नया डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, ऊपर में काटना शुरू हो रहा है। सिजुसा में हमारा फ्लड होते रहता है, अपर रिचेस में हमारा फ्लड होते रहता है। नॉट ओनली दैट, हमारे ईटानगर का हालत देखिए, पानी का सोर्सेस सूखते जा रहा है। ये स्टूडेंट का एक मेन मुद्दा होना चाहिए, इसको भी पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके सोशल अटैचमेंट आएगा। रिसेंटली हम लोग गवर्निंग बॉडी में ये पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम में हम लोग ये एक स्टेप उतारा है कि पाकी केसंग को अगर ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो विल स्टार्ट फ्रॉम स्कूल्स। स्कूल से कैसे शुरू करेगा? स्कूल एग्रीकल्चर प्रोग्राम। यहाँ में स्टूडेंट लीडर्स है, काइंडली आप वी कैन डिस्कस अहेड, आगे हम लोग बात कर सकता है इसका बारे में। हम तो ये बताया था कि जब हम लोग चौथा था यहाँ में पढ़ता था तो हम लोग के लिए एक प्लॉट एलोकेट करता था। इस प्लॉट में हम सब्जी उगाएगा, उसमें कितना अच्छा हुआ कितना बड़ा हुआ उस हिसाब से मार्क्स मिलता था। डेट वे वी ऑल्सो लर्न हाउ टू डू एग्रीकल्चर। क्यों ना हमारा डिस्ट्रिक्ट हर स्कूल में ये स्कूल एग्रीकल्चर प्रोग्राम को हम जोड़ना दें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल एमएलए यहाँ में है, क्योंकि ये पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फोरम है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बोल क्यों ना हम अपना हर स्कूल में डिस्ट्रिक्ट स्कूल एग्रीकल्चर प्रोग्राम को शुरू करें। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि गवर्नमेंट भी उसमें कुछ एयरमार्क करना चाहिए कि स्कूल एग्रीकल्चर प्रोग्राम को कैसे किया जाए। तो डू इट, आई थिंक वी ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। बाहर से हम लोग उसके मदद ले सकता है कैसे हम लोग आगे किया जाए। ये स्पेशल इन्वाइटी के हिसाब से एंकर मैडम और ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हमने शायद ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, लेकिन मेरा दिल में ये दबा हुआ था कि स्टूडेंट लोग को जब मौका मिलेगा एक दो शब्द मेरे को बोलने को मौका मिलने से मैं ये बताऊंगा। हम चाहते हैं कि जितना हम बोला है अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है काइंडली उसको नोट करके अपना कैबिनेट अब जब बन जाएगा, काल परसों आज बन जाएगा, तो अपना ये विचार को जैसे भी रखिए और आगे पीडीएफ हम तो है ही है, मेरे साथ डिस्कस करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकी केसंग एक छोटा सा परिवार है, न्यू ज़्यादा कदम मिलेंगे। हम तो रिक्वेस्ट करेगा कि जो कॉन्टेस्ट वाला चीज़ है, माने एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहा है, वोट देना शुरू हो रहा है, माने ऐसा टाइप का मत करिए। हम रिक्वेस्ट करेगा कि एक समझ बूझ के साथ में सीनियर लोग का साथ बैठ करके तो अंडरस्टैंडिंग कर लेना है। स्ट्रांगली कॉन्टेस्ट नहीं करना है, लेकिन हेल्दी ट्रेंड्स को रखते हुए अगर आप लोग उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व करने से अच्छा रहेगा, सो दैट किसी का भाई, किसी का भैया, किसी का रिलेटिव, मेरा रगो या कोई आतो कोई मतलब हाँ कॉन्टेस्ट किया था हार गया, ऐसा नहीं सोचने देने के लिए, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू बी पेड फॉर दैट। सैलरी मिलने वाला नहीं है,
उस हिसाब से सोच के आप लोग हम यही रिक्वेस्ट करूँगा, और आपका जो गार्जियन है, जो स्टूडेंट एपेक्स बॉडी है स्टेट का, उनका सजेशन के अनुसार आप लोग कॉन्टेस्ट नहीं करके बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको रिजॉल्व करना है बोल करके हम सोचता हूँ। हमको 200 बोलने के लिए जो मौका दिया है और आप लोग बहुत पेशेंटली सुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट ऑल पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। I convey my best wishes from PDF and from my personal side. Thank you very much. Thank you.